और इसमें एक नई चीज निकलती है, ये डिफेंस का मामला है, और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को ये चीज मालूम, तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। दिस इज ये तो पहले ये भ्रष्टाचार का मामला था, ये प्रोसीजरल मामला था, अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला हो गया है। दिस इज नाउ ट्रीजन, नथिंग लेस। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट स्पाइज डू। He is informing somebody of a defense matter. He's under oath. He's not like you or you. He's under oath to protect these secrets. And he has now given this secret to Mr. Anil Ambani, who knows that the biggest defense deal in the world is going to him 10 days before. The defense minister knows, foreign secretary knows, the entire defense establishment knows. This itself is criminal. This itself will put the Prime Minister in jail. Mr. Jha, I'll come to you. ये देखिए, ये पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर मामला है, कल हमने बता दिया है, कल हमने दिखाया है that the gentleman himself is, involved in this decision making. So that CAG report is a worthless report. In fact, I would term it as a Chowkidar Auditor General report. That's how I would term it. It is Narendra Modi's report, written for the Chowkidar, on behalf of the Chowkidar, for the Chowkidar, by the Chowkidar. So I wouldn't call it the Comptroller and Auditor General, I call it the Chowkidar Auditor General report. मतलब सॉरी रिपीट कीजिए, प्राइस नहीं। भैया देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक के बाद एक इसकी सच्चाई निकल रही है। पहले प्राइस की बात हुई, प्राइस की सच्चाई निकली, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम, होलैंड जी आते हैं, उनका बयान आता है कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया। सच्चाई राफेल की सामने देश के आस्ते 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 आ रही है, और मैंने कह दिया है, देयर इज गोइंग टू बी नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए करप्ट मैन, एंड उन्होंने अनिल अंबानी की मदद की। मतलब इससे और क्लियर क्या हो सकता है भाई। अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, मुझे क्लियरली मालूम है। मैं पढ़ लेता हूं फिर से। Mentioned the MOU in preparation and the intention to sign during the PM visit. Neither Foreign Secretary nor Defense Minister knows, only Prime Minister knows. Prime Minister signed. तो ये तो black and white, clear है, cut है। Sunil here, I'll come to you. In the context of following up to this, when you say it's an official secret act violation and everything else, will the Congress party file an FIR? What do you plan to do? Because well, now earlier there was one axis of corruption, second axis of procedural inconsistencies, procedural problems done by the Prime Minister. Now there's a third one. And frankly, this is the most serious. This is literally handing over a defense secret. This is it. This business that a MOU is in preparation, this is a defense secret. And the Prime Minister has compromised national security. As I said, he's done what a spy does. He has given information, defense information, to a person who's not supposed to have it. So this is clear cut. Now there are three axes. One axis, the corruption axis. Second axis, the procedural axis. And third axis, the official secret act, defense, security, national security axis. So all these three are going to be investigated. I'll come to you.
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला ये हमारा जूरिसडिक्शन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कोट कर दी, वो निकली नहीं है, उसको वहां कोट कर दिया है। तो फ्रैंकली द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज ओपन टू क्वेश्चन नाउ वेरी क्लियरली, एंड आई मीन विद दिस हमने बोला हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम देखिए जनता को इंफॉर्मेशन देने का है, हमारा काम सरकार पर दबाव डालने का, हम अपना काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है। जनता को निर्णय लेना है कि अनिल अंबानी, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अनिल अंबानी को मालूम है, रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएएल को नहीं मालूम, इनको कैसे पता लग गया? एक ही आदमी बता सकता है, नरेंद्र मोदी बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। हाँ। राहुल जी आप प्रधानमंत्री को one second, we have to go in turns. राहुल जी आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो अनिल अंबानी के मिडिल मैन की भूमिका उन्होंने निभाई। पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आप पर ये आरोप लगाया कि आपके परिवार और मैंने उनसे बोला, मैंने प्रधानमंत्री से बोला है, आप मेरे ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन करना है करो, आप हर ऑपोजिशन लीडर पे, हर आदमी पे, ऑपोजिशन के आदमी पर, हर आदमी पे आप जितना इंक्वायरी करनी है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कुछ किया नहीं, कोई इशू नहीं है, करो जितना करना है। मगर आप राफेल मामले पे भी तो कर दो, आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? अगर आप राफेल मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो करा दो इन्वेस्टिगेशन, जेपीसी बैठा दो, क्यों घबराएं आप? एक ही कारण हो सकता है कि आप उसमें शामिल हैं, क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो आप कहते हैं हाँ भैया इन्वेस्टिगेशन होगा, डालो सबको जेल में। तो हमारे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर लो, जितनी बार करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर राफेल पे करो। रंजीत, नो I'll come to you. रंजीता, Okay. I mean, I'm sure Rajnath Singh is talking about, is thinking about himself also in that, in that conversation. Look, Rajnath Singh is welcome to have an opinion, as everybody can have an opinion. But the fact of the matter is, you please ask Rajnath Singh, why, Rajnath Singh से आप पूछिए कि ये मतलब अनिल अंबानी को इस एमओयू के बारे में कैसे मालूम? अगर पीएम इतने प्योर हैं, इतने साफ हैं, तो ये अनिल अंबानी को मतलब इस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लग रहा है? डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया कि भैया, और वो मतलब आपने वो डिफेंस की फाइलें देखी हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया मैं नहीं जानता, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग, और अब इनका चीफ नेगोशिएटर बाहर आ गया, चीफ नेगोशिएटर अनिल अंबानी सिटिंग इन फ्रांस नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीएम। आई मीन कम ऑन, सो पता नहीं मतलब, yeah. I'm coming to you. What slave? Of the dynasty. Huh. That is, you people have no respect for any institution, and now you're questioning the CAG. Second is that your Mahagathbandhan means you have a new prime minister every single day. Should you be forced to pass? What's your question? Palvi, Those are not questions, those are statements. Those are statements. But what's the accusation? They are accusing the Congress party of demeaning institutions like the CAG when you say you don't respect the CAG. No, we don't say we don't respect the CAG. We say that there is so much evidence in Rafael now, including this email where Mr. Anil Ambani is negotiating on behalf of Mr. Narendra Modi, that this stuff needs to be taken into account in the CAG report, and it's obviously not being taken into account. And we're also saying that the gentleman who's making the CAG report is party to these decisions. He is part of these decisions. So he cannot possibly give a proper report. We are not questioning the institution of the CAG. Okay? So, the questions here are very simple. And it's black and white. And you know it. Why is Mr. Anil Ambani sitting in the French Defense Minister's office and telling the French Defense Minister that a MOU is in preparation with the intention to sign during the PM's visit? That's the main crux of it. When the Defense Minister doesn't know, when the Foreign Secretary doesn't know, and nobody in the defense establishment knows, it's simple. Rahul
बनता है। इन तीनों मामलों पे जो मैंने बोला, करप्शन, प्रोसीजरल एंड नाउ नेशनल सिक्योरिटी, इन तीनों पे ये एक ईमेल है भाइयों और बहनों, युवाओं, जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक एमओयू साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएएल उनमें शामिल है। एचएएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया। डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है, और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे, भ्रष्टाचार के बेसिस पे नहीं, उसी बेसिस पे हो जानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मैंने कह दिया है, देयर इज गोइंग टू बी नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए करप्ट मैन, एंड उन्होंने अनिल अंबानी की मदद की। मतलब इससे और क्लियर क्या हो सकता है भाई। अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं डिफेंस, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, मुझे क्लियरली मालूम है। मैं पढ़ लेता हूं फिर से। मेंशन्ड एमओयू इन प्रिपरेशन एंड द इंटेंशन टू साइन ड्यूरिंग द पीएम विजिट। नाइदर फॉरेन सेक्रेटरी नॉर डिफेंस मिनिस्टर नोज, ओनली प्राइम मिनिस्टर नोज, प्राइम मिनिस्टर साइन। तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है,